مصر کے ایک وسیع و عریض میدان میں اس دن حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگے۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع میں ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے قہقہے فضا میں گونجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے، اور دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگر کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن تکبر کے نشے میں چور فرعون اور ان کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ سب سے پہلا عذاب قحط اور اشیاء کی کمیابی اور گرانی کا عذاب۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت 130 میں کیا گیا ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خوش سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی نحوست کی سبب آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔
उस तूफान से घबरा कर वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की कि ए मूसा, अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे दूर फरमा दे। हम वादा करते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे और आपकी कौम बनी इसराइल पर लगाई गई सब पाबंदियां भी ख़त्म कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अजाब टाल दिया और उनके खेत खलियान को पहले से ज़्यादा हरा भरा कर दिया। ये देखकर कौम फ़िरौन ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अजाब नहीं था, बल्कि सैलाब की शक्ल में ये मौसलाधार बारिशें तो हमारे फ़ायदे के लिए थी, जिनकी वजह से हमारी ज़मीनों पर पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया है। इस तरह एक बार फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए अहद व पैमान को नज़रअंदाज कर दिया और कुफ्र और सरकशी की रविश पर कायम रहे। उसके बाद टिड्डियों का अजाब आया। टिड्डी दल का हमला लहलहाती फसलों को देखते ही देखते तबाह कर देता है। अल्लाह ताला ने तूफान के अजाब के टल जाने के बाद उस बदबख्त कौम को पूरे 1 माह की मोहलत दी कि ये हज़रत मूसा के वाज व नसीहत पर गौर व फिक्र करें, लेकिन उनकी बदअमालियाँ तो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों को मुसल्लत फरमा दिया। टिड्डियाँ न सिर्फ उनके खेतों और बागात को चट कर गईं, बल्कि घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज़ खा गईं। इस अजाब के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा एक बार फिर सामने था कि उन टिड्डियों ने सिर्फ कौम फ़िरौन को तबाह व बर्बाद किया, जबकि कौम मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल के मकानात, खेत खलियान और बागात बिल्कुल महफूज रहे। फ़िरौन के लोग रोते पीटते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इल्तिजा की कि आप अपने रब से दुआ फरमाएं कि वो ये अजाब वापस ले ले। हम पक्का वादा करते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद भी कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अजाब टल गया। अल्लाह ताला ने उन्हें फिर 1 माह की मोहलत दी कि वो गौर व फिक्र कर लें, लेकिन वो लोग अपनी पुरानी रविश पर कायम ही रहे, ईमान लाए और ना ही बनी इसराइल को आज़ाद किया। उसके बाद कीड़े मकोड़ों का अजाब आया। कमल बालों और कपड़ों में पैदा होने वाली जूं और घुन के कीड़े को भी कहते हैं। ये अजाब मुमकिन है कि दोनों किस्मों के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि उस घुन ने उसके गल्ले का वो हाल कर दिया कि 10 सेर गेहूं पीसते तो उसमें से 3 सेर आटा भी न निकलता, जबकि जुओं की कसीर तादाद उनके बाल और पलके तक चट कर गई थी। उस संगीन सूरत हाल से कौम फ़िरौन एक बार फिर बलबला उठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज़ वादे से नहीं फिरेंगे, आप दुआ फरमा दें। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर ये कौम तो कुफ्र व ज़लालत में गर्क थी। आफियत मिलते ही अपने पुराने डगर पर गामजन हो जाती। इस बार भी 1 माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादों का पास था, ना ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाज़ व नसीहत का उन पर कोई असर हुआ। चुनांचे मुद्दत मोहलत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब मुसल्लत फरमाया, जो कि मेंढक का अजाब था। इस अजाब की नौयत ये थी कि उनके घरों में इस कदर कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि वो जहाँ बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता। सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढक जाता। यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया समेत हर चीज़ और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी। चुनांचे इस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम को उनकी हालत ज़ार पर रहम आ गया। चुनांचे एक बार फिर वादे वईद हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब रफा हो गया, मगर इस अजाब से निजात पाकर वो फिर अपनी हट धर्मी पर उतर आए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा बहुत बड़े जादूगर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 1 माह की मोहलत दी, लेकिन उन्होंने तो राह रास्त पर न आने की कसम खा रखी थी। उसके बाद खून का अजाब आया। इस अजाब की नौयत ये थी कि उनकी हर चीज़ से ताज़ा खून उबल पड़ता। जो भी चीज़ रखते वो खून बन जाती। क्योंकि बनी इसराइल के तमाम अफराद इन तमाम अजाबों से महफूज थे, लिहाजा कौम फ़िरौन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो जब फ़िरौन की लोगों के हाथ में आया तो खून बन गया।
एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर फिरौन के लोग और बनी इसराइली जब खाना खाते तो इसराइली का लुकमा अपने असल हालत में होता, जबकि कौम फिरौन का लुकमा और पानी खून बन जाता। बिलाखिर फिर वही वादे हुए, दुआ की गई, अजाब फिर टल गया, मगर वो गुमराही पर ही कायम रहे। कुरान करीम ने उन्हें बड़े आदी मुजरिम करार दिया है। यूं इस कौम पर वबाई अमराज का अजाब भी आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया था। लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद हर गुजरते वक्त के साथ फिरौन के तकब्बुर, गैज़ व गज़ब और जुल्म व सितम में इजाफा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे जुल जलाल ने उनकी दराज रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। इस हुक्म के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरत और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम बरोज़ हफ्ता गुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से बहर अहमर की जानिब रवाना हुए। फिरौन जदीद हथियारों और 7 लाख से जायद सवारों के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फिरौन की सिपाहियों का एक सैलाब और आगे समंदर की मौजें थी। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो हज़रत मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। चुनांचे दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रास्ते निकल आए। बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफजदा फिरौन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फिरौन और उसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए। फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाया, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं और मैं फरमान बरदारों में से हूँ। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाने वाला बना रहा। तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फिरौन की लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। कौम फिरौन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुसलमान के लिए न सिर्फ बाइसे इबरत हैं बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिन हालात का शिकार हैं वो अल्लाह की नाराज़गी ही की वजह से है। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज उम्रा अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते, रिश्वत की लेन देन को मजबूरी का नाम लेते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, गिबत करना तो मामूली सी बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, झूठ बोलना, बेईमानी तो कारोबार का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं।